set 3, lesson number 3, arithmetic progression. Okay, yesterday we have solved till 9th question. Now today is the 10th question. Now the difficulty level will increase. So I hope you will do a lot of concentration. अभी यहाँ से आपको बहुत concentration करना है, because now from here your all the higher order thinking question will start. Maybe ask for 4 marks or 3 marks. Okay. So see here, the question is, there are 37 terms in an AP. The sum of terms plays exactly, the sum of 3 terms, sorry here, the sum of 3 terms placed exactly at the middle is 225. That is the first condition. And sum of last 3 terms is 429. This is the second condition. Write the AP. आपको AP find out करना है, and for that we required A and D. Okay, as you all know that for writing AP we required A and D. Okay, means if you will suppose here, so let's start with, suppose first term is A and common difference is B. So what will be your AP? AP will be A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and so on. Okay. So this we have to find out. Okay, write the AP. The question is write the AP. So we suppose first the first term A, common difference D. Then we have written the AP in the supposing form. A plus D, A plus 2D, A plus 3D. This we have to find out. Now we'll start the procedure. What is the procedure? So here, first we all know that what is given to you, there are 37 terms. Total 37 terms is there. Okay. So you will write here, given is T1, T2, T3. Last term is T37. Okay, it will start from T1 and the last term will be 37 because there are 37 terms. So last term will be 37, T37. Okay, therefore n is equal to 37. This is Tn. This is Tn, no? T37, therefore n is equal to 37. Okay, now the first condition is, what is the first condition? Condition 1. This is only important. The sum of the 3 terms placed exactly at the middle. Middle में जो 3 terms है, middle में, जैसे अगर मैं आपको बोलूंगी there are the 10 boys in a class. Okay, so who will be in exact position? So you will say whether 5 or 6. You will say, someone will say, ma'am, it will be 5. Someone will say that will be 6. Okay, तो पहले आपको find out करना होता है middle term. So what will be the middle term? First term is T1, last term is 37, T37. But what will be the middle term? Okay, so what? So we'll first find out the middle term. So there is a formula for finding out the middle term. That is n plus 1 upon 2. N plus 1 by 2. N plus 1. What is n? N is 37. I told you. Because the last term is 37. So the n will be 37. So we will find out 37 plus 1 upon 2, 38 upon 2, that will be 19. So exactly middle term is, T19. Okay, so your exact middle term is T19. Okay, आपका जो exact middle term है वो कितना आएगा? 19 आएगा. With the help of this formula, middle term is equal to n plus 1 by 2. You will put the value of n, 37. Then you will solve it. You will get 19. So your exact middle term is T19. Okay. अब आपकी condition क्या थी? Sum of the 3 terms, 3 terms बीच की. तो आपका exact middle term क्या आया? 19. So what will be the exactly 3 middle terms? T18, T19 and T20. One before 19, one after 19. So that will be the exact 3 middle terms. Okay. So T18
T19, T20 are थ्री मिडल टर्म्स. ये आपके थ्री मिडल टर्म्स है. ओके, T18, T19 and T20. Now their sum is 225. So we will do the sum. T18 plus T19 plus T20 is equal to 225. Now I will put the value. Yesterday again I told you. What do you mean by that T18? T18 का meaning क्या होगा? A plus 17D minus 1. T19 का meaning क्या होगा? A plus 18D. T20 का मतलब क्या होगा? A plus 19D. Okay, so we'll put the value directly here. A plus, what will be that? 17D plus A plus 18D, value of T19, and A plus 19D is equal to 225. Okay, now you will add. You have to add A plus A plus A. 3A is there. 3A plus 17 plus 18, that will be 35. Sorry, 35 and 19. So you will get 54. 54D is equal to 225. After adding all the D and A, you will get 3A plus 54D is equal to 225. Now you can simplify this by dividing 3. So simplify this. Divide the equation by 3. Okay, so you will get A plus 17D is equal to, because 8. Okay, A plus 18D is equal to 75. Okay, 3 7s are 21, 3 5s are 15. Okay, 3 1s are 3, 3 8s are 24. So A plus 18D is equal to 75. This is your first equation from condition 1. What was the condition 1? The sum of the three terms placed exactly at the middle is 225. So first we found out that what is the middle term. So by using the formula n plus 1 divided by 2, we got T19 as a middle term. Then we have taken T18, T19, T20 as the three middle term. We added those terms and we got A plus 18D is equal to 75. Now we'll take the second condition. What is the second condition? Second condition is, what is the second condition? Sum of the last three terms. Now sum of the last three terms. Last three terms will be, now the last term is T37. So T36, T35. Okay. So they are the last three terms. Their addition is 429. So you will write down second condition. T35, T36, T37 are last three terms. They are the last three terms. Okay. So you have to write down that. Now you will add T35 plus T36 plus T37 is equal to 429. Again put the value. T35 means A plus 34D. Okay. And T36 means A plus 35D plus A plus 36D is equal to 429. Add it. You will get, okay. If you wanted to write this, you can write, then I will solve. Just to write, take this one. Okay. What is it? Just see that there are we suppose that the first term is A and the common difference is D. Okay. Then we have suppose AP is A plus D, A plus 2D and A plus 3D. Okay. Then we have written T1, T2, T3 till T37. Then we got middle term. After that, we have taken the exact situation, the sum and the addition. Okay.
So just see that if anybody have any confusion regarding this step, you can ask me right now, then I will solve the remaining. Is there anyone who have a doubt in this? किसी को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है क्या? आपको बहुत ये इजी करके मैंने बताया है. आपको पहले कैसे फाइंड आउट करना है मिडल टर्म को, फिर उसके बाद कैसे मिडल टर्म निकालने के बाद आपको उसका एडिशन करना है मिडल 3 टर्म्स का. यस लक्ष्मी, लक्ष्मी, यस बेटा. मिस आपने कंडीशन 3 में लिखा है 35, 36 और 37, ये क्यों? Here, हाँ मिस ये. what was the condition? Sum of last 3 term. Last 3 term is the C. The last term is 37. So before that 36 will come, no? Then 35 will come. Last 3 term. Here, T37, T36, T35. So they are the last 3 term. So what was the condition? Sum of last 3 term. So sum of last 3 terms. So T35, T36, T37. Okay miss. Yes miss. Okay. Is there anyone? टीचर Yes, Gaurav. ये साइड का समझा ना फिर से T18 इस side 19 का? 20 का इस साइड हाँ हाँ, तो अभी मैं ठीक है. अभी यहाँ पर क्या था हमारा मिडल टर्म? मिडल टर्म क्या था हमारा T18, क्योंकि देखो हमारा एग्जैक्ट मिडल टर्म कितना आया है? 19 आया है ना. तो 19 से पहले का 18 और 19 के बाद का 20. तो ऐसे 3 टर्म हो गए. तो T18, T19, T20. So these are the 3 terms which are in the middle. Okay. Now we will add this. T18, T19 plus T20 is equal to 225. मैंने आपको बताया इसको कैसे सॉल्व किया जाता है. आपको एक प्लेस करना है. You have place 1, है ना. तो यहाँ पर हो जाएगा A plus 17D. ये T18 का हो गया. A plus 18D ये T19 का हो गया. ओके. और A plus 19D ये T20 का हो गया. फिर उसके बाद मैंने ऐड किया A plus A plus A. तो A 3A. ओके. फिर 17 plus 18 मैंने ऐड करूंगी तो कितना आएगा? 35. 35 में मैं 19 ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 54. ओके. सो 3A plus 54D is equal to 225. फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी बाय डिवाइडिंग 3 से डिवाइड करूंगी. सो 3 कैंसिल हो जाएगा. इसको कैंसिल करूंगी 3 1 जा 3, 2 इज रिमेनिंग, 3 8 जा 24. इसको करूंगी 3 7 जा 21, एक बचेगा. तो 3 5 जा 15. तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा A plus 18D is equal to 75. ओके. उसके बाद केस सेकंड लेना है. केस सेकंड क्या है हमारा? सम ऑफ लास्ट 3 टर्म. तो लास्ट 3 टर्म क्या रहेगी? T35, T36, T37 आर लास्ट 3 टर्म. उनको ऐड करना है. ऐड करने के बाद आगे यहाँ पर देखना है. See here. Okay. So you will add. You have to add A plus A plus A. So how much will become? 3A. 3A plus. Okay. फिर आपको इसको ऐड करना है 34, 35, 36. आपको इसको ऐड करना है. So 34, 36 and 35 when you will add this number you will get 105D. आपको ऐड करना है 34, 35, 36. Okay. 6 4 10, 16, 3 3 3 9, 10, 105. तो आपको यहाँ पर एडिशन मिलेगा 105. So 105D is equal to 429. Okay. आप इसको ऐड करेंगे. Then you have to simplify again. आपको 3 से इसको डिवाइड करना है. Divide the term by 3. You will get A plus 3 3s are 9, 3 5s are 15. Okay. 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 3s are 9. So this is your second equation. अब आप इसको 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं. आपको ये मिलेगा A plus 35D is equal to 143. अब आपको क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना है. आपको आता है ये चीज. You know very well how to solve this. Okay. So take equation.
इसको सॉल्व करेंगे हम. टेक इक्वेशन 1 and 2, इसको सॉल्व करेंगे हम. ये बहुत इजी होता है, आपको पता है. a प्लस इसको ले लेते हैं 35d इज इक्वल टू 143. आपने अपना माइक म्यूट पर रखना है. आपने अपने डाउट पूछ लिए, देन जस्ट इमीडिएटली यू हैव टू म्यूट योर माइक. ओके. a प्लस 18d इज इक्वल टू 75. ओके. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके. सब्ट्रैक्शन हम करने वाले हैं. माइनस माइनस एंड माइनस. ओके. प्लस a माइनस a will cancel. 35 minus 18 70. d is equal to 143 minus 75. You will get 68. Okay. Now d is equal to 68 upon 17. 17 fours are 68. So d is equal to 4. Now put this value. Put d is equal to 4 in equation 1. Okay. इक्वेशन 1 में रख लेंगे हम. a प्लस 18d इज इक्वल टू 75. a प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 75. यू कैन मल्टीप्लाई. a प्लस 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 and 3 7. Take this 72 from left hand side to right hand side. a is equal to 75 minus 72. You will get a is equal to 3. Now you got d is equal to 4, a is equal to 3. So what will be your answer? आपका AP क्या था? a plus d, a plus 2d and so on. तो आपका AP क्या रहेगा? a is 3, a plus d 3 plus 4 7, a plus 2d. 2d means 4 2s are 8, 8 plus 3 11 and so on. So 3 7 11, these are the AP. Okay, you can solve and you can see the answer. So this is a question. In that only the important thing is that how to find out the middle term. बस ये important था कि middle term कैसे find out करना है. आपको क्या करना है, n plus 1 upon 2. आपको ये लेना है और आपको find out करना है middle term n plus 1 by 2. तो आपको middle term मिलेगा 19. फिर आपको exactly 3 middle term लेने हैं. T18 T9. Yes. मैम मिडल का मतलब मिडल का मतलब होता है बिल्कुल बीच का. बीच का. हाँ जैसे हाँ जैसे मैं आपको बोल हाँ yes. जैसे समझा ना, मिडल टर्म बीच का बिल्कुल. यस. समझा क्या? यस. पर नहीं समझ. कौन सा ये? हाँ. Okay. Maybe you have a network issue, because I'm not getting your voice properly. So here middle term आपको कैसे find out करना है? n plus 1 by 2. What is n? n means last term. So last term is 37. Okay, there are the 37 terms. So last term is 37. So first you have to take the formula middle term is equal to n plus 1 by 2. Okay. फिर आपको उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा आपको 19 एज अ मिडल टर्म. आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. T18, T19, T20 are the 3 middle terms. Okay. Their addition, आपको इनको ऐड करना है. After addition, you will get a plus 18d is equal to 75 as your equation 1. This is your equation 1. Then you have to take the second condition. Sum of last three terms. Last three terms are 37 is the last term. So 35, 36, 37. These are the last three terms. Okay. So T35, T36 and T37 are the last three terms. Add these terms. Okay. And add their values. T35 means a plus 34d. T36 means a plus 35d. And a plus 36d is equal to 49. Add this number. You will get 3a plus 105d. Okay. Simplify this. You will get the equation a plus 35d is equal to 143 as the equation second.
After that, take both the equation 1 and 2, solve it, do the subtraction. Plus a minus a will cancel. 35 minus 18 is 70. 143 minus 75 you will get 68. Then 68 upon 70. 17 4s are 68. You will get the value of d is 4. Put this value in equation 1. A plus 18b is equal to 25. Then after putting the value, you will get a plus 72 is equal to 75. 75 minus 72, you will get the value of a is 3. So your first term is 3. Common difference is d. So you can find out a plus d, a plus 2d, 3, 7, 11. Okay. This is the procedure. Yes, answer. कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है प्रॉब्लम. आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है. मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं है. आप जैसे करते हो ना, आपको एक इक्वेशन बनानी है, सेकंड इक्वेशन बनानी है, दोनों को सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद a और d की वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसको वैल्यू को पुट अप कर देना है a plus d a plus 2d में. बस कुछ भी नहीं है. आपको यहाँ पर मिडिल टर्म में थोड़ा प्रॉब्लम था, बाकी कुछ भी नहीं है. इससे आप एकदम सिंपल दिया हुआ है कि बीच की तीन टर्म्स है, उसका इतना एडिशन है और आपको मैंने बताया कि जब भी आप ऐड करते हो तो यू हैव टू पुट अप द वैल्यू. बस और कुछ नहीं है. इसमें आप लोग बहुत ऐसे सोच रहे हो कि क्या है, कुछ नहीं है. ये आपको क्या करना है, सिर्फ मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है. मिडिल टर्म के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, नोट इट, n+1/2. और उसके बाद आपको मिडिल टर्म जैसे मिलेगा ना, आपको समझ लो आधा सॉल्यूशन तो वही हो गया, बिकॉज़ द रिमेनिंग वन यू नो दैट हाउ टू सॉल्व दैट. ओके, बस ये से करते जाना है आपको. टेक ए स्क्रीनशॉट. यस मैम, यस अगर ये जो हमें डी मिला है ना, डिस्टेंस कॉमन डिफरेंस मिला है ना, अगर हम उसे इक्वेशन 2 में भी रखकर फॉर्म करेंगे ना, तो मिलेगा डी आंसर. उसे इक्वेशन 2 में भी रखकर फॉर्म करेंगे तो भी हमें आंसर 3 मिलेगा. यस आपका दोनों इक्वेशन सेम होता है ना. मींस व्हेन यू आर सॉल्विंग द इक्वेशन यू विल गेट द सेम वैल्यू. बट हम क्या प्रीफर करते हैं, वी आर प्रीफरिंग द स्मॉलर नंबर. हियर इट इज 18d and here 35d is there. That's why we preferred the smaller number 18d. हमने स्मॉलर नंबर प्रीफर किया, इसलिए हमने वो लिया है. ओके. यस मैम. हाँ मैम. चलो, do not see the next question. So this question star is there. It means that this is higher order thinking question. अभी सब लोग का बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन दो. Just avoid the sounding sound and keep your concentration fully here. Okay? आपको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखना है. The question is 11 question is there. If first sum of an AP is 8, if first sum of an AP is 8, then second term is B, second term is B, and last term is C. Last term T and last term is C. Okay. Then show that what we have to show? Show that sum of all terms means SN. Sum of all terms is A plus C, B plus C minus 2A upon 2 under bracket B minus A. Keep your concentration here. बहुत अच्छे से आपको concentration के साथ इसको करना है. Now first is the question. If first term of an AP is A, आपका first term जो AP का है वो A है, second term B है, तो आपका AP कैसे फॉर्म होगा? Now see the solution. Okay, what will be the AP here? A, B, dash 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 dash. Last term is C. यही आपको दिया हुआ. First term is A, second term is B, and the last term is C. So your AP will be
बी ए बी, आगे कुछ नहीं लिखना अपनी मर्जी से, जितना आपको दिया हुआ है दैट मच ओनली यू हैव टू राइट ए बी दैट लास्ट सम इज सी, नॉट फ्रॉम हियर। ओके, अब यहाँ से हमको क्या करना है ना, पहले ये देखना है फर्स्ट सम आपका क्या है, T1 इज A एंड Tn इज C। आपका जो लास्ट सम है n का टर्म C, आपका लास्ट सम C है, लास्ट सम इज व्हाट Tn, n का टर्म इज C। ओके, नाउ first sum is A, last sum is C, now find out the common difference is B कैसे फाइंड आउट करते हैं, T2 minus T1, मैं यहाँ पर एक चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर मैं T1 T2 दोनों लिखती हूँ, T1 is A, T2 is B, Tn is C। Okay, so T2 minus T1, what is your T2? T2 is B minus T1 is A, B minus A, this is your D। ये याद रखना है आपको, आपका D का वैल्यू क्या है, B minus A आएगा आपका। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको Tn का फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ Tn, so we will use the formula of Tn is equal to A plus n minus 1 D। ओके, अब हम वैल्यूज को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप करेंगे। ये मैंने सिंपल फॉर्मूला लिखा है, अगर लाइट आ भी रहा होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैंने सिंपल फॉर्मूला लिखा है Tn का। Tn की वैल्यू कितना है, C इज इक्वल टू, अब जो जिसका वैल्यू मैं लिखते जा रही हूँ, C इज इक्वल टू A का वैल्यू A है क्योंकि फर्स्ट टर्म A है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू n है, माइनस 1 n माइनस, अब b का वैल्यू कितना है आपका, b का वैल्यू है b माइनस a, तो b माइनस b, ये आपको वैल्यू पुट करना है Tn की जगह पर आपको Tn। ओके, हाँ, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, c इज इक्वल टू, Tn की जगह c रखा है मैंने, c इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d की जगह मैंने लिखा है b माइनस a। अब आपको क्या करना है ना, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है आपको देखेंगे, मैं c को उधर ले आती हूँ, पहले इसको सॉल्व करती हूँ, a प्लस, अब ये n जो रहेगा ना, ये इसके पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, a प्लस n पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा b माइनस a, और ये माइनस 1 भी क्या करेगा, पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 1 ब्रैकेट b माइनस a इज इक्वल टू c। ये जो c था ना, उस साइड मैंने यहाँ लिखी है, क्या किया मैंने यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो n मल्टीप्लाई फुल ब्रैकेट माइनस 1 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस 1 ब्रैकेट b माइनस, और ये जो c था मैंने यहाँ लिख लिया है c। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको ओपन द ब्रैकेट, ना ओपन द ब्रैकेट a प्लस, अब मैं ये वाला ब्रैकेट नहीं ओपन करूंगी क्योंकि मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं n को एज इट इज रहने दूंगी, n b माइनस a, मैं माइनस 1 और b को मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस b वन जा b, माइनस माइनस प्लस a वन जा a इज इक्वल टू c। क्या किया मैंने, आई ओपन द ब्रैकेट, मैं ये वाला ब्रैकेट नहीं ओपन कर रही हूँ क्योंकि मुझे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसीलिए अगर मैं ये ओपन कर दूं ब्रैकेट, मुझे फिर से उसको क्लोज करना पड़ेगा, तो a ब्रैकेट b माइनस से मैंने ऐसे रखा है, माइनस 1 को मैं पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो माइनस b वन जा माइनस b, दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, a वन जा a। ओके, नाउ दिस प्लस a एंड प्लस a, इट विल बिकम 2a, ये 2a हो जाएगा, तो ये जाएगा 2a प्लस n अंडर ब्रैकेट b माइनस a इज इक्वल टू c। या अब मैं क्या करूंगी, ये पूरी वैल्यूज उठाकर इधर लेकर आ जाऊंगी, ठीक है, 2a, अच्छा यहाँ एक b बचा हुआ था, समझ गया, ये मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर a प्लस a 2a माइनस b प्लस n अंडर ब्रैकेट b माइनस a, ये मैंने a और a को ऐड किया है। अब मैं क्या करूंगी, पूरी वैल्यूज उठाकर इधर लेकर आ जाऊंगी, ठीक है, a को मुझे क्या करना है, बिल्कुल मुझे उसको a को अकेला छोड़ना है, ठीक है, ताकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेकर आते हैं सारे वैल्यूज को,
यहाँ लेकर आती हूँ मैं C, ठीक है, -2a प्लस b, ठीक है। ये यहाँ पर ये पूरा मैं उठाकर यहाँ लेकर आती हूँ, तो यहाँ पर +2a -2a हो जाएगा, -b प्लस b हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू a अंडर ब्रैकेट b माइनस a। अब ये b माइनस a को भी यहाँ लेकर आ जाते हैं और इसको रीअरेंज कर देते हैं, पहले लेकर आते हैं c माइनस 2a प्लस b अपॉन, दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, b माइनस a इज इक्वल टू c, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू a, यहाँ पर n आएगा, यहाँ n आता है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, रीअरेंज करती हूँ। रीअरेंज कैसे करूंगी, मुझे क्या चाहिए, b प्लस c माइनस 2a चाहिए ना, तो मैं ऐसा क्वेश्चन को देखूंगी, इसको अरेंज करूंगी, b भी है प्लस b है c भी है, तो आई विल रीअरेंज b प्लस c माइनस 2a, बस मैंने इधर से इधर किया, b प्लस c एक साथ में मैंने रीअरेंज किया है अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू n, ठीक है। अब मेरे पास n की वैल्यू ये आ गई। नाउ मुझसे क्या बोला था, शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म मींस Sn, तो सम ऑफ ऑल टर्म मींस Sn, Sn फाइंड आउट करना, तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, वैल्यू को पुट अप करूंगी, ठीक है, तो वी विल पुट अप द वैल्यू हियर। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ ना, यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला यूज करती हूँ, मुझे इजी जाएगा, n बाय 2 t1 प्लस tn, तो इजी हो जाएगा। मैंने दो फॉर्मूले बताए ना आपको ऐसे, जिससे पहले लिखा अभी, ओके। n का वैल्यू कितना है, ये n का वैल्यू पूरा मैं लिख लेती हूँ, b प्लस c माइनस 2a अपॉन 2, ठीक है, ये मैंने n का वैल्यू लिखा है, b प्लस c माइनस 2a अपॉन 2 b माइनस a, ये मैंने n का वैल्यू लिखी है, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, और ये जो 2 क्वेश्चन का था वो यहाँ पर आ गया, इनटू t1 का वैल्यू क्या है a, tn का वैल्यू क्या है c, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आया मेरे पास Sn इज इक्वल टू a प्लस c, इसको देखो रीअरेंज करेंगे, देखो a प्लस c पहले चाहिए, तो इसको इधर कर दो, a प्लस c 3a है, b प्लस c माइनस 2a, ठीक है, अपॉन 2 है हमारे पास, b माइनस a है, दिस वी हैव टू शो दैट, कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट नहीं, समझ लेंगे अच्छी तरीके से। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट, बहुत कंसंट्रेशन रखना है आपको और आपको समझ चाहिए, ठीक। क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b है और लास्ट टर्म c है, ओके। तो हमने लिख लिया AP, A, B and C। फर्स्ट टर्म T1 is A, T2 is B, last term Tn is C। कॉमन डिफरेंस निकालना है, यू नो द फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस, T2 minus T1, T2 is B, B minus A is D, तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ यू राइट ऑन द फॉर्मूला Tn, Tn is equal to A plus n minus 1D। अब आप उसकी वैल्यू पुट अप करना है, Tn की जगह C लिखना है, A की जगह A लिखना है, n की जगह n, 1 की जगह 1, सिर्फ D की जगह आपको B minus A करना है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, n को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, a प्लस n ब्रैकेट b माइनस a -1 ब्रैकेट b माइनस a इज इक्वल टू c। सॉल्व करूंगी, a प्लस, इसको नहीं सॉल्व करूंगी, मुझे ये n अकेला चाहिए था, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दैट्स व्हाई n अंडर ब्रैकेट b माइनस a, आई विल सॉल्व दिस, मैं इसको सॉल्व करूंगी, b 1 जा b माइनस b, a 1 जा a प्लस a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, ये a और a को ऐड करूंगी, 2a हो जाएगा। ये जो मेरे पास माइनस b है वो यहाँ लिखूंगी इसके साथ 2a माइनस, और ये जो मेरे पास है वो यहाँ लिखूंगी प्लस n b माइनस a इज इक्वल टू c।
उसके बाद ये पूरी टर्म उठाकर मैं यहाँ लेकर जाऊंगी सी के पास। ये 2a जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, तो c माइनस 2a, ये माइनस b प्लस हो जाएगा यहाँ c माइनस 2a प्लस b। अब यहाँ बचेगा a अंडर ब्रैकेट b माइनस a। अब b माइनस a को भी क्या करूंगी, मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा c माइनस 2a प्लस b अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू n, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूंगी एज पर माय आंसर। मुझे क्या चाहिए, b प्लस c चाहिए, आपको सिर्फ रीअरेंज करना है, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a इक्वल टू a, ठीक है। ये n का वैल्यू आ गया है। आपसे पूछा था शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म मतलब Sn, तो आपको Sn का फॉर्मूला यूज करना है n/2 अंडर ब्रैकेट t1 प्लस t। के बाद आपको n का वैल्यू रखना है b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, ये 2 तो यहाँ का यही रहेगा, और t1 का वैल्यू a है, tn का वैल्यू c है, यहाँ पर हमने लिखा था, ठीक है। उसके बाद इसको रीअरेंज करना है, a प्लस c पहले लिख लेंगे एज पर द आंसर, a प्लस c प्लस इनटू b प्लस c माइनस 2a अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट b माइनस c। क्या नहीं समझे, थोड़ा सा आपको मैंने बोला है कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस सॉल्यूशन, और इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसमें प्रैक्टिस भी आपको बहुत लगेगी, आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आप इसको बार-बार अगर आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल गेट कमांड वर्ड। और अभी जितने भी इसमें स्टैटिक क्वेश्चन है, जितने भी हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, ऑल रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, ओके, जस्ट नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको tn का फॉर्मूला यूज करना है, फिर आपको sn का फॉर्मूला यूज करना है। tn के फॉर्मूले से आपको n की वैल्यू निकालनी है, फिर sn के फॉर्मूले में रख कर आपको n की वैल्यू उसमें पुट करना है, इसका आंसर। फिर भी क्या आपको नहीं समझा इसके अंदर, यू कैन आस्क। यस स्टूडेंट्स, आर और स्लीपिंग, या बहुत ज्यादा आप लोग तो डीप थिंकिंग में चले गए हो। रिफ्रेश योरसेल्फ, टेंशन नहीं लेना है कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे आएगा, नो, आपको करना है इसको, यू हैव टू डू दैट। आपने मुझे बोला था मैम प्रॉब्लम सेट लो, मैंने लिया है, लास्ट क्लास थोड़ी डिफिकल्ट आएंगे, ये हो दैट, यस यस, कीप इट अप, आस्क इट आउट। Unmute yourself. Yes. Are you asking your doubt? अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन से भागेंगे तो ये नहीं है कि वो सिचुएशन हट जाएगी, ये होगा कि वो आपके लिए और Ma'am, ma'am, can you please explain again that? Ma'am, यस, कुछ बोल रहे हो आप? मिस यस, मिस आपने सम ऑफ टर्म लिखा है ना, वहाँ पे t1 प्लस tn ना, तो उधर में फॉर्मूला ऐसा होता है ना 2a प्लस n माइनस 1 और d। करेक्ट 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 करेक्ट, आपने सही बोला। लेकिन मैंने आपको जब वो फॉर्मूला समझाया था, सिखाया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें आप दो टाइप के फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक आप जो आपने कहा वो, और एक ये यूज कर सकते हैं n/2 एंड t1 प्लस tn, मैंने आपको ये बताया। ओके मिस, आपने नीचे लिखा है ना n के बाजू n/2 के नीचे b प्लस c माइनस 2a, मिस वो कहाँ से आया? हाँ, ये जो n है ना, ये n का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया ना, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस c, तो हमने ये जो n का वैल्यू है ना वो यहाँ पर पुट किया, ये n की जगह पर b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, 2 एज इट इज, तो जो फॉर्मूले में था वो है, और n की जगह पे ये वैल्यू है, पूरी जो वैल्यू है ना वो n की वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू। ओके मिस ऐसे सम कहाँ मिलेंगे सॉल्व करने के लिए? Target is there, no? You got last year students they got. Maybe teachers have taken them from the students. So you can take, and I told you that Adi Sharma book is there, no?
RD Sharma book. So in that also you will get this type of question to solve. Okay, miss. Thank you, miss. Yes, yeah, you're right. मैं आपको एक बात बोलूंगी, don't run away from the difficult situation, don't run away from the difficult question. आप जितना उसके पीछे जाओगे, you will get learn to new things. आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी. ठीक है, जैसे कि हम अपनी डे टू डे लाइफ से हम जब डिफिकल्ट हमारा पैंडेमिक का चल रहा है, तो वी लर्न, हमको बहुत सारे टीचर्स थे, दे डोंट नो हाउ टू टीच ऑनलाइन, बट दे जस्ट ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम, नाउ दे आर परफेक्ट इन द ऑनलाइन टीचिंग. तो ऐसे ही होता है, जब आपके ऊपर कोई कंडीशन आती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो आपको उससे कुछ सीखना होता है, ना कुछ से भागना होता है. तो यहाँ पर भी यही है कि जब आपके पास कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, तो आप बोलेंगे नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, लेट इट बी, ये क्वेश्चन आया भी तो एग्जाम में, मैं इसको स्किप कर दूंगा, ये स्किप कर दूंगी, ये थिंकिंग आपको माइंड में नहीं रखना, बल्कि आपको ये सोचना है कि नो, आई हैव टू डू दिस, मुझे करना है इसको, आई विल डू द प्रैक्टिस एंड आई विल डू. ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Only 5 minutes is there, and so let's take the last question, क्योंकि ये इसके बाद वाले क्वेश्चनों को कर लेने वाली हूँ, because there are only 5 minutes. तो मैं लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल लेती हूँ, वो हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. 14 क्वेश्चन, जरा फ्रेश अप भी हो जाएंगे, फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन को. जो 12 और 13 क्वेश्चन है ना, बोथ आर सेम, तो और कल वो हो जाएगा हमारा. फिर में लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 14 क्वेश्चन है ना, वो मैं देखती हूँ. बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा थोड़ा इजी क्वेश्चन आने से. So your 14 question is ₹1000 invested at 10% simple interest. Simple interest is P. Check at the end of every year is the total interest amount is in AP. आपको देखना है कि आपका टोटल अमाउंट AP में है या नहीं है. If this is an AP, if it is in AP, अगर आपको AP में आता है, then find interest amount after 20 years. Then find out 20 years के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है. तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर एक्टिविटी है, फटाफट देखना है, PRN अपॉन 1000, सॉरी अपॉन 100. तो हियर सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर. यहाँ पर आपको ईयर वाइज भी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर एंड आफ्टर 3 ईयर you have to put up the value. P के वैल्यू आपको put up करके दिया हुआ 1000 into 10 into 1 upon 100. So what will be the answer? आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा. Both the zero will cancel. You will get 100 1 the 100. So answer will be 100. After 1 year, after 2 years, 1000 into 10 into 2 upon 100. Again cancel the terms. You will get the answer 100 2 are 200. Okay. After 3 years, 3 साल के बाद कितना मिलेगा? 1000 into 10 into 3. Only number of years we are changing. 1 2 3. 300. तो ये AP में आया आपका. It is an AP. ये AP में है. Yes, it is an AP. आपका AP में आया है ये. ओके. तो यहाँ पे आपसे आगे क्या पूछ रहे हैं? What will be the after 4 5 6 years? तो 4 ईयर में देखो, फर्स्ट ईयर में 100 है, सेकंड ईयर में 200 है, थर्ड ईयर में 300 है, तो फोर्थ ईयर में 400 रहेगा. ओके. तो फॉर 4 ईयर इट विल बी 400, फॉर 5 ईयर इट विल बी 500 एंड सो ऑन. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आफ्टर 20 ईयर्स. आफ्टर 20 ईयर्स आपको फाइंड आउट करना है. आफ्टर 20 ईयर्स क्या रहेगा? तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है और आपको पूछा है फ्रॉम दिस फाइंड आउट D एंड A. तो D कितना रहेगा? देखो कॉमन डिफरेंस, सब में डिफरेंस कितने का है? 100 का. 100 200 300 400 500. ओके. तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो कितना है? आपका 100 है. तो योर डिफरेंस विल बी 100 एंड योर A, योर फर्स्ट टर्म इज आल्सो 100. फॉर्मूला इज गिवन टू यू. Tn A plus n minus 1D. So T20 you have to find out. A is 100 plus 20 minus 1 into 100. Find out 100 plus 19 into 100. 100 plus 1900 is 1900. 1900 plus 100 2000. So after 20 years it will be 2000 rupees. So you have to write the answer. Amount of simple interest
बहुत सिंपल था। अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि पूरा एक्टिविटी आपको दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 years is ₹2000। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर सब कुछ तो दिया हुआ था, थोड़ा ही आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर आपके पास आ गया था 100, 200, 300, 4th ईयर में 400, 5th ईयर में 500। आपको डी निकालना था, आपको ए निकालना था। ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका 100 था। डी मतलब T2 minus T1, तो आपने डिफरेंस निकालना है, तो आपको डिफरेंस मिलेगा 100। देन यू हैव टू पुट अप द वैल्यू एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट। बहुत सिंपल एक्टिविटी दी हुई थी आपको। अब कल जो है मैं आपको जो हमारे 12 and 15 क्वेश्चंस है मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगी, दैट आर क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी को? सिंपल है। आपको देख लो, आप लोग को पेज नंबर पूरी एक्टिविटी आपको दी हुई है, ये पूरा आपको लिखा हुआ है, बस आपको ये फिल अप करते जाना है, जैसे आपको फिल अप। ओके ओके मैम, कैन आई मैडम? Ma'am, can still didn't understand. Didn't understand? You have seen the question on page number, have you seen the question beta? On page number 80. On page number 80 question is given to you. First see the question. आपको ये पूरा दिया हुआ है format. The full format is given to you. Only these are the boxes there. सिर्फ आपको boxes दिए हुए हैं. You have to solve these numbers. आपको solve करने का किसको? आपको P दिया हुआ था, simple interest is 1000, rate of interest is 10, and number of years is given to you. Number of years is 1, 2, 3, 4, 5. Many years is given to you. तो आपको बस number of years चेंज करना है, 1, 2, 3, आपको solve करना है। और आपसे ये पूछा था whether they are in AP or not, तो आपको लिखना है yes it is an AP। AP में है तो D क्या है, A क्या है, तो D is 100, common difference is 100 and the first term is 100। और आपको ये फॉर्मूला पूरा दिया हुआ है और आपको जगह जगह पर बॉक्सेस दिए हुए, बस आपको बॉक्स Okay, everyone. Okay, ma'am. Can I wind up? Yes, yes, we can wind up. Okay. Thank you, ma'am. Okay, thank you, students. So keep your doubts. Okay, for tomorrow we will solve tomorrow the remaining questions and we will complete this lesson with the problems. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, students.